In this auspicious parent-teacher meet, today is a great day that you all going to meet your new principal, sir. Hope this meeting will be helpful for all learning development. Parents are requested to mute and switch on their They both. request from every parent to mute your mic. So it's good afternoon. Some parents, mostly almost all the parents must have been present. So before I could present myself before all of you, आप सबको मेरा सादर नमन, नमस्ते. बच्चों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद. My blessings to our dear children. Dear parents, it is the first occasion I am appearing before you, and this is R. Jagdish Kumar Reddy, Principal, CBSS Day Public School, Jumritalia, Kodarma. Joined recently in month of April, 25th day, April 2022, after getting my transfer from the state of Chhattisgarh. About me, I am simple a teacher, and I have served the state of Odisha, the state of Sikkim, the state of West Bengal, state of Chhattisgarh. Now I have come down to Jharkhand. Meantime, I have headed 8 schools, and I have served more than 30 years. It's the 33 years in my teaching profession. Regarding my professional growth, I will not appraise myself further. My work will speak. Uh, about the place, all the places are blessed. यहाँ आपके बच्चे नहीं होते, आप जैसा पालक नहीं होते, ये स्कूल नहीं बनता. ये स्कूल नहीं बनता तो मेरा कलीग्स नहीं होते और मेरे को यहाँ प्रिंसिपल ना होते, यहाँ आना नहीं पड़ता. तो मेरे मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है. आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट you have thought well of your child. You have put your child in a very prestigious school, DAV, and which is a benchmark in the education sector so far private sector is concerned. And we have produced number of alumni, about 4 millions of alumni. And if I go back to the history, we have started our journey in 1886, 1886 साल. लाहौर में हमारा पहला स्कूल, हमारा पहला बच्चा, द बेस्ट अलुमनाई, द प्राउड अलुमनाई शहीद भगत सिंह. और आज के दिन में 2022 हमारा सबसे बड़ा एक नंबर जो सिटीजन है, भारत का राष्ट्रपति महामहिम हिज एक्सेलेंसी रामनाथ कोविंद इज ए पास आउट ऑफ डीएवी कॉलेज कानपुर. वो भी हमारा बच्चा है. तो इससे पता चलता है कि हम लोग कितने बड़ा परिवार है. वी हैव मोर देन 1 लाख and more teachers. We have more than 900 campus, school campus in remote area of India and abroad, about 37 countries we have DAV schools, and we all are affiliated to CBSE. In some cases it is affiliated to state board. यहाँ जो आपका DAV कोडरमा, it is also only CBSE affiliated. We have senior secondary school and we are having 2 streams, science and commerce. So here one thing comes in our mind that why we have chosen DAV. इसके बारे में आपको पता होगा, हमारा भारत का सबसे ज्ञानी पत्रकार आज नहीं रहे हमारे बीच, टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखता स्तंभकार थे, लिखा करते थे, उनका लेख आता था, डॉक्टर खुशवंत सिंह. वो एक बार बोले थे, he once told that DAV is the biggest NGO in the world. ये इंडिया नहीं, एशिया नहीं, वर्ल्ड में, ऑन द प्राइवेट सेक्टर.
So it is the biggest NGO in the world. So हम लोग इतने पुराने हैं. The first, as I said, the first alumni is Syed Bhagat Singh. Similarly, the first principal, वो तो संत थे, देवी के संत थे, उनका नाम था महात्मा हंसराज. आपका जो विद्यालय बना, परमार साहब ने जो जमीन और मकान दिए, ये दिस वाज डन बाय, और ये स्थापित हुआ 1991 में. और उनके पीछे तो एक महात्मा थे, उनका नाम था नारायण दास ग्रोवर, एनडी ग्रोवर. और मैं यहाँ जो प्राचार्य के हिसाब से आया हूँ आपके सामने में आज ये बात कर रहा हूँ, मैं भी उनके चुना हुआ एक बंदा हूँ. तो हम लोग डीएवी का एक अंग है. इतना बड़ा विशाल परिवार, इस परिवार में हम शामिल हुए और अब तक निरंतर सेवा कर रहे हैं. आपका बच्चों का सेवा भी हमारा मूल लक्ष्य है. और हम बच्चों का जितना साझेदारी रहता है बच्चों के साथ, पालक में विश्वास करता हूँ, जो एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1, क्लास 2, आप सब क्लास 1 और 2 सुबह, आज सुबह मैं क्लास एलकेजी यूकेजी को पेरेंट्स को मैं संबोधित करता था. अभी मेरा मौका मिला आप लोगों को बात करने के लिए, तो मैं भाग्यशाली रहा इस मामले में. आभार भी हूँ क्योंकि अपना कीमती समय जो लंच आवर कुछ काट कूट के आप मेरे सामने में आए. मैं कुछ चीज आपके सामने में रखूंगा आपके बच्चों के लिए जो अच्छा रहेगा. और इन दिनों में ज्वाइन करने के बाद मेरा आगे वाला सपना क्या है, व्हाट इज द रोड मैप फॉर मी, व्हाट इज द विजन ऑफ माई सेल्फ टू सी योर चाइल्ड, वेदर आई कैन हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो बेटर, और आई कैन टेक द स्कूल टू द हाइट नोन बिफोर. फॉर व्हाट आई हैव अपीयर्ड, मैं इसी मीटिंग को रखा और बहुत कम समय में आपसे कुछ तथ्य को रखूंगा जो आपको जानना जरूरी भी है. Just feel proud that you have given your child in Davis School. I also feel privileged that I have got parents like you. मैं भी एक पिता हूँ, मेरा भी एक बच्चा है और मैं पहले प्राध्यापक था. I was a lecturer in the degree college. केवल मेरा बच्चे को इंग्लिश टीचिंग देने के लिए I have come down to teachership. So I have stepped down. I have demoted myself from lecturer to teacher. Then I become principal. So, and even I was the assistant regional officer in Chhattisgarh. Now, because I am in Jharkhand, I have nothing. But I feel fortunate. I owe my thanks. I owe my obligations to all the stakeholders. आप जैसा बेहतरीन पेरेंट्स आपके सबको मैं नमन करता हूँ. और मेरा जो यहाँ डीएवी का मैनेजमेंट है, मेरा एआरओ मैडम डॉक्टर उर्मिला सिंह, मेरा डायरेक्टर साहब डॉक्टर जेपी सूद, आशा करता हूं कि आप और हम अगर दोनों साथ साथ चलें, हमारा बच्चों का एक सुनहरा भविष्य निर्माण करने में सक्षम रहेंगे. सो फॉर दैट मैं एक चीज में बिलीव करता हूं, अगर आप अपने पूर्ण विश्वास से ये अपने बच्चे को मेरे डीएवी स्कूल में यहाँ दाखिला दिए हैं तो आपका बच्चा तो मेरा हो गया. अब ये जो विद्यालय है, देवी विद्यालय आपका है, तो आपका बच्चे मेरे हैं और ये विद्यालय आपका है. ये भावना जब होगा, ये एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एम्बियंस क्रिएट करेगा और हम लोग बहुत हद तक बच्चों का चरित्र निर्माण, बच्चों का भविष्य निर्माण बहुत अच्छे से कर पाएंगे. फॉर दैट माय डियर पेरेंट्स, आई ओ माय थैंक्स, आई ओ माय ऑब्लिगेशंस, आई ओ माय ग्रेटिट्यूड to all of you, not because you have spared some time of your life, family life to listen me. Rather, I am deeply obliged and convey my deep sense of gratitude on behalf of DAV fraternity, Jumritalaya Kodarma, to you, exclusively to you, because you have put your child in DAV and you have trusted DAV and you have stand by DAV in all the days. And I expect the same in future coming days. With this, let me have some discussion, because you know your child is reading in class 1 and 2. एक और दो क्लास प्रथम और द्वितीय ये दाखिला श्रेणी होता है. सीबीएसई फॉर्मेट में कोई एलकेजी यूकेजी नहीं है, 1 to 12 है. तो अभी जो नूतन शिक्षा नीति है NEP 2020, उसके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं.
तो अब केवल पढ़ना है। जो नया शिक्षा नीति है, राइट टू एजुकेशन, बहुत चेंजेस हुआ है राइट टू एजुकेशन में। इसमें पहले जो था, क्लास 8 तक कोई फेल का सवाल ही नहीं है, कंडीशनली पास करके हम लेते थे। 9, 10, 11, 12 बोर्ड था। अब नया शिक्षा नीति में 9, 10, 11, 12 में बोर्ड होगा, केवल एक ही होगा 12 में, बाकी सब इंटरनल बोर्ड। हम डीएवी वाले क्लास 8 में एक बोर्ड करते हैं, इंटरनल बोर्ड, डीएवी इंटरनल बोर्ड। ये सब आपको धीरे धीरे आगे पता चलेगा। लेकिन जब बच्चा क्लास 1 और 2 में पढ़ता है, उसको हम बोलते हैं ईईडीपी, अर्ली एजुकेशन फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो यहाँ क्या होता है, हम मौलिक शिक्षा देते हैं, भौतिक शिक्षा बाद में मिलता है, बौद्धिक शिक्षा देते हैं। ओके, यहाँ मैनर्स, एटिकेट्स, बिहेवियर, एटीट्यूड, ग्रैटिट्यूड, ह्यूमिलेशन सब कुछ सिखा जाता है। हमारा मूल मंत्र जो दिन शुरू होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं, तो ये और जो हमारा वेद मंत्र है, आनो भद्रा कृणो, दैट मीन्स लेट ऑल गुड थॉट्स कम फ्रॉम एवरी कॉर्नर इन्फ्यूज इन माई माइंड। सब चारों दिशा से अच्छे बुद्धि सब आए, हमारा मन में समा जाए और हम एक अच्छा चरित्र बने। स्वामी विवेकानंद तो बोले थे कि द एंड ऑफ एजुकेशन इज कैरेक्टर। यहाँ चरित्र निर्माण होता है। दिन का शुरुआत में जब विद्यालय, आपका विद्यालय ज्वाइन किया था, पहला दिन जो मॉर्निंग असेंबली में मैं बच्चों का एड्रेस किया, मॉर्निंग असेंबली खत्म होने के बाद आपको बच्चे को पूछा कि आप भगवान के क्या कर रहे हैं अभी इतना समय? ना सर, मॉर्निंग असेंबली किए। मॉर्निंग असेंबली में आप क्या करते हो? ना प्रेयर करते हैं। प्रेयर किसको करते हो? ना ईश्वर को करते हैं। मेरा सवाल था, आप ईश्वर को कभी देखे? सारे बच्चे बोले ना। बोले आप तो कैसे झूठ, सफेद झूठ बोल दिए। यू हैव टोल्ड ए व्हाइट लाई टू योर प्रिंसिपल। आप सब देखे हैं। कैसे देखे हैं? पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, गुरुदेवो भव और भारत में अतिथि देवो भव। चार ईश्वर आपका इर्द गिर्द में घूम रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप ईश्वर को देखे नहीं। यही सेंस, यही कल्चर हम आपका बच्चे के मन में देते हैं। बच्चा यदि आपको अपना ईश्वर माना, आपका बच्चा कभी चाहेगा ईश्वर को दुखी करने के लिए? ना ईश्वर कभी चाहेगा अपना बच्चे को दुखी करने के लिए। सो सदैव ये जो कल्चर है, ये जो थॉट है, ये जो फीलिंग्स है, इंस्पिरेशन है, ये मोटिवेशन है, आपका बच्चे को बहुत सहायक होगा आने वाले दिन में। सो हम 3 एग्जामिनेशन करते हैं, जैसे जानते हैं, कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट जो बोलते हैं इसको। एक अगस्त महीना में होगा, जिसका परिणाम सितंबर में आता है। दूसरा एग्जाम बोलते हैं दिसंबर, एक्चुअली परिणाम आता है जनवरी में। और तीसरा असेसमेंट फरवरी में या मार्च में होता है। परिणाम 31 मार्च तक आता है। हमारा नया सेशन 1 अप्रैल से शुरू होता है। ये जो 3 एग्जाम नहीं है, ये असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, हम ऑब्जर्वेशन, हर बच्चा का एक फाइल बनता है हर दिन का। मेरा निवेदन आप सबको, माई हम्बल सबमिशन टू ऑल ऑफ यू, बच्चे को रेगुलर स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं, शादी ब्याह की आउटिंग का ना रखें, डेली भेजें बच्चों को। बच्चा 100% अटेंडेंस दे। और हम लोग और एक काम कर सकते हैं। मेरा साथी कब टीचर कभी कभी ज्यादा होमवर्क देते हैं। यहाँ का बच्चा आप है, पालक होते के नाते ज्यादातर माँ, मदर इज द फर्स्ट टीचर एंड टीचर इज द सेकेंड मदर। हम ये बिलीव करते हैं। इसीलिए मेरा जो एलकेजी, यूकेजी 1 और 2 चारों क्लास में हम टीचर का डेजिग्नेशन देते हैं मदर टीचर, क्योंकि सेकेंड मदर है और आप बिकमिंग मदर, यू आर द फर्स्ट टीचर। तो आप अगर अच्छा बताएंगे, अच्छा चीज सिखाएंगे तो बच्चा तो अल्टीमेटली अच्छा ही ना करेगा। बाकी रहा पापा क्या करते हैं? वो तो एटीएम है, केवल मनी छापते हैं, मनी रखते हैं, है ना? ठीक है, लेकिन मेरा और एक बार निवेदन रहेगा पापा लोगों को। मैं भी एक पापा हूँ। मैं जीवन में बच्चे को, मैं कुछ नहीं, मैं बायो टीचर था, मैं बहुत मेडिकल स्टूडेंट, डॉक्टर, बहुत साइंटिस्ट सब बना दिया। लेकिन मेरा बच्चा जब डॉक्टर बना, वो भी मेरे को डाइनिंग टेबल में बहुत आसान से बोल रहा था, बाबा आप इतना सबके लिए सब कर, आप मेरे लिए क्या किए? आज तक मैं केवल काम में उलझा रहा। आपको मैं मेरा एक्सपीरियंस से मैं एक छोटा सा सलाह दूंगा, आप अन्यथा ना ले। जीवन का
कम से कम जितना काम रहे, जितना कमाए, जितना व्यस्त रहे, 24 घंटा से केवल आधा घंटा ऑफिस से आगे हाथ मुंह धोए, बस चाय पी लिए, आधा घंटा जीवन का बच्चे के साथ बैठ जाइए। मैं दावे के साथ गारंटी देता हूँ, बोलता हूँ कि आपका बच्चा भविष्य इतना जो आपका जो नजदीकी जो गैप है ना बच्चे के साथ बहुत कम हो जाएगा। बच्चा डिपेंड करेगा आपको, मानेगा और फील करेगा, यस माय पेरेंट्स आर गॉड, आई एम वेरी मच सिक्योर्ड विथ माय पेरेंट्स, पापा से और माँ से। मन में दुख रहता है, पापा बहुत, कौन सा पेरेंट, हम लोग उतरते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी, तो माँ सबसे क्लोज हो जाती है, क्यों, माँ तो 24 घंटा चिपकते रहती है। कोई बच्चा नहीं बोलेगा पापा मेरा प्यारा है ना, बहुत हार्डली कम बच्चे बोलते हैं। तो आप अगर आधा घंटा समय दें बच्चे को, मैं मेरे ख्याल से बच्चा बेहतरीन दिशा में जाएगा और एक दिन बहुत नाम कमाएगा। मेरा गुजारिश है कि आप मेरा बात रखेंगे, कम से कम जीवन का आधा घंटा अपने बच्चे के लिए समर्पित करेंगे। और कभी कभी मेरा साथी, मेरा टीचर क्या करते हैं ना, ज्यादा ज्यादा वर्कलोड देते हैं, क्लास वर्क, होमवर्क। इसमें क्या होगा, आपका एक बढ़िया सा एपिसोड, कोई कोई भी अहल्या बाई का कोई एपिसोड, बासाई का कोई, घर घर की कहानी का कोई एपिसोड चला जाता है। होमवर्क करते करते आप अनमाइंडफुल हो जाते हैं, रात को बहुत प्रेशर देते हैं, बुरी बात है। अगर ऐसा रहेगा, मैं टीचर्स को बोलूंगा जुडिशियसली काम करने के लिए। आप उसमें क्या है, बीइंग मदर, इफ यू आर द चाइल्ड यू टेक अप ऑल द टास्क, बट आप बच्चे को बोल के करवाइए ये सब चीज। और क्लास वर्क, होमवर्क प्रॉपरली चेक हो रहा है कि नहीं, आप तुरंत सूचना दीजिए। वहां हम स्कूल में बहुत इंचार्ज रखे, एकेडमिक इंचार्ज, उनसे बात कीजिए। नहीं होगा तो मैं मेरा नंबर, ईमेल आईडी आपको दिया हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन माय नंबर एंड ईमेल आईडी। नाउ असाइनमेंट्स, छुट्टी में हम प्रोग्राम करते हैं बाहर जाने के लिए। मेरा ये एक सजेशन है, मेरा निवेदन है, बच्चे के अंदर खूबियां ढूंढिए। भारत में एक सैकड़ों सचिन तेंदुलकर है, हम मार देते हैं, हम दबा देते हैं। बहुत सैकड़ों एम.एफ. हुसैन है, चित्रकार है, दबा देते हैं। मेरा बच्चा अगर केबीसी में बिग बी के सामने में हॉट सीट में बैठ के अगर क्विज का आंसर दे और बोलेगा रेड्डी सर मेरा प्रिंसिपल, आई फील प्राउड। मेरा तो छाती बहुत चौड़ा हो जाएगा, गर्व से फूल जाएगा। मेरा बच्चा अगर इंडियन आइडल में गाना गाएगा तो मैं बहुत गदगद हो जाऊंगा। क्या भारत, सारा भारत, हम तो भर भर के वोट करेंगे। कोई सुपर डांसर बन जाएगा तो भर भर के वोट करेंगे, उसको माथे का ताज बनाएंगे। देखिए, ढूंढिए कोई, ईच चाइल्ड इज स्पेशल, प्रत्येक बच्चा बहुत स्पेशल है। आप बच्चे को प्रोत्साहन कीजिए और जो जो उसका हुनर है, हुनर को आइडेंटिफाई कीजिए और उसी हुनर को आगे बढ़ाइए। हम है ना गाइड करने के लिए, विद्यालय है ना शिक्षा देने के लिए, लेकिन पहला मेंटर तो आप ही है। घर से सीखता है सब चीज बच्चा, आप उसको एक्सप्लॉइट कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए। हम उसको मार्ग मुझ के साफ करके पॉलिशिंग करके बेहतरीन बना देंगे। नाउ उसका जो एटीट्यूड टू ग्रेटिट्यूड, सबको सम्मान करना, माता पिता को सम्मान करना, हम हवन के माध्यम से सिखा देते हैं। मेरा बच्चा, मैं पहले दिन मैं बच्चों के साथ क्लास 1 और 2 बच्चों के साथ बैठ के मैं हवन किया था। पहला दिन जब इस विद्यालय में आया था, आई आस्क्ड माय टीचर कंडक्ट वन हवन विद द स्टूडेंट्स ऑफ लोअर क्लासेस। सो आप लोग थोड़ा सा घर से भी ये माहौल रखें, थोड़ा स्पिरिचुअल। आप जानते हैं आज अगर देश में इतना इनडिसिप्लिन हो रहा है, इट इज ड्यू टू द लैक ऑफ स्पिरिचुअल होल्ड। स्पिरिचुअलिटी एक चीज होता है, एक पावर होता है, सुपर पावर होता है। हम जानते हैं ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी, सर्वाधार, बहुत ब्लेस्ड होते हैं। वो क्या करते हैं ना, जब मन दूषित है, कलुषित हो जाता है, उसको साफ कर देते हैं। जैसे कि एसिड सोने को खरा उतार देता, पूरा चकचक करवा देता है, ऐसा ही है। तो स्पिरिचुअल होल्ड होना चाहिए। तो हम सिखाते हैं, हमारा मंत्र वैदिक मंत्र रहता है, हाँ, विश्वानी देवा। तो दैट इज ग्रेट एक्चुअली। वेद उपनिषद हम सिखाते हैं बच्चों को इन डीएवी। और बच्चे को काउंसलिंग का जरूरत है। कभी बीच में कोरोना हमको बहुत प्रताड़ित किया। कोरोना के चलते हुए हम मोबाइल दे दिया ऑनलाइन टीचिंग के नाम पे। हम कभी नहीं देखते लेने के बाद हम कैसे भूल गए कि क्या कर रहा है क्या नहीं।
हम तो देखे अपना स्वेटर बुनने के लिए, नहीं तो कहीं कढ़ाई में कुछ खाना पका रहे हैं, नहीं तो कहीं टीवी सीरियल देख रहे हैं। ऐसा बच्चा खोल तो लिया पढ़ाई के लिए, लेकिन तुरंत उसमें शिफ्ट करके अपना वीडियो गेम चलो, नहीं तो सोशल मीडिया में चैटिंग करना शुरू कर दिया, नहीं तो कोई मूवी देख लेना, डोरेमन, पोकेमन, भीम, छोटा भीम, ये सब देखते हैं। तो माइंड उसमें से डाइवर्टेड हो जाता है पढ़ाई से। तो आप उसमें ऑनलाइन टीचिंग जितना लाभदायी रहा उतना भी हमारे लिए वास्तव में बहुत उसका दुरुपयोग हुआ है। तो उसको अभी ऑफलाइन मोड ऑफ टीचिंग में हम लोग पूरा सक्रिय भूमिका हमारा चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सारे पालकों को, अब ये टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखें, बच्चों को बाहर भेजें खेलने के लिए। सोशल नेटवर्क कैसा होना चाहिए, अपना गुरुजन कौन है, फ्रेंड्स कैसे होना चाहिए, सब वो शिक्षा कम से कम दिया जाए। ये इतना बात अगर आप मेरा रखेंगे, मेरे ख्याल से मेरा बच्चा एक बेहतरीन इंसान होगा। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। देखिए, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षक हूँ। आप में से कितना चाहते हैं कि आपका बच्चा टीचर बनेगा? मैं अगर पूछूंगा आपका बच्चे का सपना क्या है, आपका सपना क्या है, तुरंत उत्तर मेरा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वकील बनेगा, विदेश जाएगा, बिजनेसमैन बनेगा। लेकिन टीचर बनने के लिए कभी कभार एक दो रिस्पॉन्स आता है। तो चाहे वो डीसी कलेक्टर साहब हो, एसपी हो, या कोई बड़ा शख्स हो, उसको बनाता कौन? शिक्षक ना बनाता है, टीचर ना पढ़ाता है उसको। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो सपना है, वॉट एवर ड्रीम यू हैव फॉर योर चाइल्ड, माई रिक्वेस्ट, माई एडवाइस, जस्ट लीव योर ड्रीम टू द फुलेस्ट। आप सपना को जीना सिखाइए बच्चे को। देखिए, कोई सब विद्यालय +2 डिग्री देता है। आप मेरा सवाल का उत्तर दीजिए। आप क्या +2 डिग्री पढ़ाने के लिए स्कूल में देते हैं? 99% बोलेंगे हाँ, कभी कभार ना आएगा। जो ना है वो सही है। +2 तो डिग्री तो मिल जाएगा, एडमिशन दाखिला लिए तो मिल जाएगा। लेकिन मैं विश्वास करता हूं, एक पालक के हिसाब से, एक पिता के हिसाब से, एक शिक्षक के हिसाब से, एक प्राचार्य के हिसाब से मैं विश्वास करता हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए। आई वॉन्ट टू सी माई चाइल्ड ए गुड मैन, ए गुड पर्सन इन द सिटी, इन द सोसाइटी, ए गुड सिटीजन इन द सोसाइटी। एक बेहतरीन ह्यूमन बींग बनाने के लिए मेरा प्रयास है। इसीलिए डीएवी फेमस है। डीएवी इसलिए बहुत बहुत अव्वल है, आगे में है। हम लोग सर्वांगीण उन्नति देखते हैं बच्चों का, इसलिए आपका साझेदारी थोड़ा चाहिए। आई नीड योर कोऑपरेशन। अतीत में बहुत कुछ दिए होंगे, अब मैं आने के बाद भविष्य में भी आपका सहयोग प्रार्थना करता हूँ। आई नीड योर कोऑपरेशन। यू, मी, योर चाइल्ड एंड टीचर्स all will work hand in hand, and we will go a long way, and we will take the name and fame of this school to the height known before. Your cooperation is my strength. We always try, we always help your child to grow better. ठीक है? अगर आपका बच्चा गुड है, यू ट्राई फॉर द बेटर। आपका बच्चा बेटर है, यू ट्राई फॉर द बेस्ट। आपका बच्चा बेस्ट है, यू ट्राई फॉर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्योंकि मैं विश्वास रखता हूं, आसमान के ऊपर और भी आसमान है, तो उसको उड़ान भरने के लिए ताकत चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। क्योंकि आप माँ हैं, आप पिता हैं, हम तो शिक्षक हैं। हम तो टेक्निकल माने वैषयिक शिक्षा दे देंगे, टेक्निकल नॉलेज दे देंगे, लेकिन जो बौद्धिकता है सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लीज हेल्प योर चाइल्ड टू ग्रो बेटर, एंड वी ऑल्सो टेक केयर टू हेल्प योर चाइल्ड ग्रो बेटर। विथ ऑल दिस, एक सूचना मेरे तरफ से प्राचार्य के हिसाब से, हमारा मैनेजमेंट का डिसीजन है, मेरा निवेदन है, विनम्र अन्यथा मत लीजिए। जो स्कूल ड्यूज समय में नहीं दे रहे हैं उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। हम मैनेजमेंट आगे आ चुका है। अगर धीरे धीरे अभी मैं लागू नहीं करूंगा, आपसे बात करके बाद में लागू करूंगा।
बहुत सारा जो सुविधा दिया जाना चाहिए स्कूल में नहीं है। कैसे करना है आपसे परवर्ती अवस्था में मीटिंग करके मैं ये डिसीजन लूंगा। आप ये जो जुर्माना से बचना से पहले करवाइए, ठीक समय में स्कूल ड्यूज दीजिए। इस बार का मैं भी रखा हूँ, मैनेजमेंट आपके तरफ से मैनेजमेंट से रखा हूँ, प्रार्थना किया हूँ। जो पालक जिस घर से 2-4 बच्चे आते हैं एक साथ, उनको अगर एक साल में एक बार दे दिया जाए तो उनको 5% का छूट हम देंगे। और जो टाइम भी देंगे, 3 महीना में एक बार देना, हर महीना में संभव बहुत कष्ट होता है। 3 महीना में एक बार, साल में 4 बार लिया जाएगा क्वार्टरली के हिसाब से। वो आप इसको इसमें सेशन से कार्यकारी नहीं हो सकता है मेरे को जो फिजिबिलिटी, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड द सेशन। कब होगा दैट टाइम विल स्पीक, आई विल टेक योर परमिशन, मैं आपका इजाजत लेके इसको इम्प्लीमेंट करूंगा। पैनिक होने का कोई जरूरत नहीं है, आपका सारा समस्या मैं ही हल करूंगा। मैं एक चीज बता देता हूँ, ऑल द प्रॉब्लम्स हैव सॉल्यूशंस। ऐसा कोई दुनिया में प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। बट आई लर्न, मैं इन दिनों में यही सिखाऊं, बी ए पार्ट ऑफ सोल्यूशन रादर देन द प्रॉब्लम। आपके पास जो प्रॉब्लम है मेरे पास रखते हैं, सोल्यूशन लेके आइए, समाधान लेके आइए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। नहीं तो हम सोचेंगे हम खुद एक समस्या है। आई विल थिंक दैट आई माई सेल्फ इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो प्लीज हेल्प योर सेल्फ, please help your child, and please help your school, and that only lead to a common hassle free, healthy and academically rich school, and your child will grow much better in upcoming days. With all these, I request all of you, if you have any thing to suggest or anything to put, I have no time right now. I'm scheduled for another official engagement with CBSE again, because I have a meeting with the CBSE again. I will meet in next edition. I will give prior information. I'll be back to you. मैं फिर आपको नोटिस देके बुलाऊंगा। अब फिजिकल मोड में बात होगा, ऑनलाइन तो होता है, फिजिकल मोड में आपसे बात करूंगा विद्यालय में एक एक्सक्लूसिव मीटिंग में। एवरी सेकंड सैटरडे स्कूल में होगा पेरेंट टीचर मीटिंग, आप लोग आइएगा और बच्चे को बिल्कुल पढ़ाई के लिए भेजिएगा। अगर स्वास्थ्यगत कारण से ना आ पाए तो ठीक है, और विद्यालय चलते ऑफिशियल टाइमिंग में कोई आउटिंग, कोई शादी वादी में जाना कि कुछ करना जो हो जाता है इमरजेंसी, केवल स्वास्थ्यगत हेल्थ ग्राउंड से करवाइए, नहीं तो अवॉइड कीजिए। छुट्टी में करवाइए, सब चीज प्री प्लान वे में करवाइए। और अगर विद्यालय की तरफ से कहीं भूल और कहीं त्रुटि, कहीं कुछ खामियां रहता है, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा माफ कीजिए। क्योंकि मैं काम कर, जैसे कि किताब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे एडमिशन ज्यादा हो गया, किताब नहीं है, मैं मंगा रहा हूँ, आने में लेट है, जब आएगा मैं आपको सूचना दूंगा। मैं अभी वेबसाइट का आईडी दिया हूँ, डाउनलोड करके कुछ चैप्टर को पढ़ लीजिए। और आप मेरे को डायरेक्टली बात करने के पहले क्लास टीचर के बाद एकेडमिक इंचार्ज, कोई भी इंचार्ज, डिसिप्लिन इंचार्ज, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, सबसे बात कर लीजिए। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, मेरा मेल आईडी, मेरा नंबर मैं दिया हूँ, यू डायरेक्टली कम्युनिकेट टू मी, आई विल रेस्पॉन्ड। मैं आपका फोन नहीं उठा सकता हूँ, हो सकता है इफ आई विल बी बिजी, बट आई विल कॉल यू बैक डेफिनेटली। एक पेरेंट्स का मैसेज को मैं अटेंड करता हूँ और बात भी करता हूँ। So don't hesitate. Feel free to talk to your principal to appraise the problem if you are facing. In any inconvenience if you are facing, you please talk to your principal accordingly. With all these, I take leave, expecting that we'll be meeting in future in more healthier manner. But prior to that, last but not least, I, on behalf of all my colleagues, all my friends, all my supporting staff, place a bunch of heartfelt thanks and gratitude. I'm deeply obliged and deeply touched because आप सब बेहतरीन हो, बेहतरीन पेरेंट्स हो, आपके बच्चे बेहतरीन हैं, बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और ये जुमरी तलिया बहुत, मैंने नाम सुना था पहले। I never thought of coming down to Jharkhand, but I arrived and I have reached. मैं अगर आया हूँ, मैं समर्पित भाव से आपका बच्चों का सेवा करूंगा, आपका भी सेवा करूंगा आने वाले दिन में।
and with anticipation that you will trust me, you will have faith me, and you will cooperate me. With all, I submit my Lord to bless all of us. Oh Lord, grant us faith that from day to day we may walk with you in a blessed way. Thank you. Thank you very much. सबको सादर प्रणाम. नमस्ते. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.